BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm the इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो पर मैं हूँ आरजे मुस्कान। शो चल रहा है बातों का अड्डा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद ही खास गेस्ट। जी, मैं बात कर रही हूँ BDCA के प्रेसिडेंट मिस्टर ध्रुव नारायण सिंह सर की। सो इट्स रियली अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर एंड प्रिविलेज टू हैव यू amidst us in the studio. Thank you, and I feel the same way. All right, sir. Now that we have, already been informed that you recently have been appointed as the unopposed president of BDCA, which is Bhopal Division Cricket Association. So my very first question to you is, how do you see this new role and how do you feel about it? Actually, exactly ये बहुत ज़्यादा नया रोल नहीं है मेरे लिए. जी. I have been BDCA president for a long time before also. Okay. There was a dispute between us and there was a rival group. Okay. And with the intervention of MPCA, we were kept out of the functioning. Right. But somehow we fought it out, and about 6-7 years of fighting. Right. Then they recognized us, and the elections were conducted, and I was again re-elected unopposed Right. as the president of the BDCA. Okay. So we really hope the feeling is absolutely amazing. Quite amazing because I am basically a cricketer Oh. and a sports enthusiast. That's also. an additional information for all our viewers. I represented, I captained Bhopal University in cricket. Okay. I represented Bhopal division for many years. I was a very hard probable for Madhya Pradesh Ranji Trophy for many years. Oh. So I myself was being a good cricketer Right. and sports enthusiast. Right. I am always happy to be a part of any sports activity and conduction of games and all. Right. So how did cricket fascinate you so much? And when exactly did that happen? Actually, cricket is my first love. Okay. And since my childhood, I used to play a lot of cricket. Okay. Gully cricket. Right. Then I was... That's how it starts in Yes. India, And then I was in my school team. Okay. My school used to conduct an inter-school cricket tournament. I used to play in that. Okay. Then I was in college. I represented Hamidia College and Safia College both. Okay. And then I represented Bhopal Vishwavidyalaya Right. and Bhopal Sambhag, as I told you. Right. So since I am basically a cricketer and I love cricket very much. Okay. And so it's a very great privilege for me to be in action now and to do something good for Bhopal cricket, Bhopal संभाग के बच्चों के लिए. Right. अगर मुझे कुछ करने का अवसर मिलता है तो I think it will be a great pleasure. Absolutely. And I would love to do something कि भोपाल के अभी तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी इंटरनेशनल भोपाल दे पाया है जेपी यादव के रूप में. हम चाहेंगे आने वाले समय में और खिलाड़ी भोपाल की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए. जी, we absolutely feel you, sir. Also, sir, as the president of, BDCA, what can you let us know about the association? How exactly does it function? And what is the role that it performs? Actually, there are associations in district level basis. Okay. And then above them there is a divisional association. Okay. And above us there is MPCA, Madhya Pradesh Cricket Association. Right. So we are affiliated to each other for the conduction of the game. Okay. We select team in various age groups. Okay. Under 14, under 19, under Right. 23, senior, Right. and as well as girls में सारे उसमें ग्रुप में लड़कियों का भी आजकल बड़ा क्रिकेट होता है. Wow. तो we have a parallel cricket of girls. Okay. And That's interesting. yes, quite interesting. And And Bhopal is important. doing very well Okay. in girls cricket. Wow. एंड मैं तो यहाँ आया था तो मैंने सोचा था कि मैं फादर से बात करूँगा तो अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ पर गर्ल्स की एक कोचिंग का एक वो शुरू करना चाहूँगा. Wow. इफ ही एग्रीज. Right. तो हम लोग टीम बनाते हैं, टूर्नामेंट में उनको भेजते हैं जो तमाम प्रदेश के तमाम टूर्नामेंट होते हैं. Right. और उनको हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स. Right. तो कुल मिला के एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना
एक ऐसा फेयर एटमॉस्फेयर पैदा करना और फेयर सिलेक्शन करना राइट जिसमें प्रतिभा को हम कहीं से भी उनको हेम्प वो ना करें, मतलब उनके साथ कोई भेदभाव ना करें राइट और अच्छे बच्चे चुने जाएं और जो योग्य हैं, डिजर्विंग क्रिकेटर्स हैं, दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली तो ऐसा हमारी मंशा रहती है और अगर ये काम होता है तो उसमें अपने आप ही खेल आगे बढ़ता है राइट और बॉयज़ गेट एंड गर्ल्स विल गेट ऑल द अपॉर्चुनिटी टू कम फॉरवर्ड एंड प्ले for their various districts, divisions, right state and as well as country. absolutely sir. Now that you are one of the most integral parts of the association, what is your plan ahead? Like, what have you thought to do in order to boost the sports culture of the state? I have been involved in many games before also. Okay When I was a corporator, okay I used to conduct a mayor trophy Okay. in which we had 22 to 23 games every year we used to conduct. wow Cricket, football, hockey, chess, badminton, पतंगबाजी, wow डोंगा चालन right और तांगा so a दौड़। traditional touch as well. हाँ, मतलब Right. 22-23 खेल हम कराते थे okay और पूरे भोपाल में एक उसका स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी होता था, okay तो उसमें हमने बहुत सारा काम किया कई साल और बड़ा उसकी तारीफ होती थी, मीडिया कवरेज बहुत हुआ करता था उस जी, ज़माने में। जी फिर हमने बाद में 2 सोसाइटी के माध्यम से, एक तो उदय सोसाइटी के माध्यम से और फिर मेरे फादर दाऊ साहब श्री गोविंद नारायण सिंह जी की स्मृति में एक समिति बनाई थी, उनके माध्यम से हमने स्कूल के इंटर स्कूल क्रिकेट कराए okay जिसमें 70 से 80 स्कूल आते थे all right और फुटबॉल कराया, उसमें भी इतनी टीमें आती थी, हॉकी, चेस, right शूटिंग। सो ये सारी प्रतियोगिताएं हम बहुत कराते रहे और आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स एंड कवरेज एंड ऑल द कटिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो ये हम कराते रहे। बीच में जरूर 6-7 साल का देयर वाज अ बिग लल, I was busy with my personal things so much, but again I have revived that Dao Sahab Society. right I am again in BDCA, right and I will definitely do my level best right to make the atmosphere high absolutely about the sports and मैं ये चाहूँगा कि बच्चे जो कॉलेज और स्कूल से निकलने के बाद इफ़ दे आर डिवोटिंग देयर टाइम टू मोबाइल्स एंड वो जो चौराहे पे खड़े रहते हैं वो ना करके मैदान में आए जी और खेलें, बिकॉज प्लेइंग जो है वो आदमी को बहुत मजबूत बनाती है फिजिकली, कैरेक्टर वाइज एंड एवरीथिंग। right सो कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, absolutely तो हेल्दी बॉडी यू विल गेट बाय प्लेइंग ओनली। जी all right sir, what do you think are the challenges that sportsmen and sportswomen face in the country today? चैलेंजेस बेसिकली ये है कि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, जी unless or until they have played up to a level, right they will not get priority in jobs, right and उनको पढ़ाई में भी उतना इंसेंटिव नहीं मिलता। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी खेलता है right और किसी कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है या डिवीज़न में खेलता है, जी तो जितना उसको पढ़ाई में उसके बदले में मिलना चाहिए, उसका एक कहते हैं ना कि बेनिफिट मिलना चाहिए या मुआवजा मिलना चाहिए, है ना, वो नहीं मिलता है। तो कि टाइम तो बहुत लगता है। right इफ़ यू वांट टू कम्पीट इन ए गेम तो आपको टीम में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, right तो वो उनको उतना कंपनसेशन मिलता नहीं है। right तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर खिलाड़ियों के ज़माने में सरकार नौकरी दिया करती थी, जी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को बहुत उस ज़माने में अच्छी नौकरियां जैसे फूड इंस्पेक्टर या इंडस्ट्री इंस्पेक्टर, जी पंचायत इंस्पेक्टर या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ऐसे Right. जॉब्स मिला करते थे। right ऐसी कोई सरकार स्कीम कर दे या कोई ऐसा एक पर्स या पेंशन बांध दे कि Right. ठीक है, इफ़ यू प्ले अप टू ए लेवल तो हम आपको इतनी सिक्योरिटी तो देंगे, बिल्कुल तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि मैंने ये देखा है कि चूँकि खेल में हमने ये देखा है कि बहुत अच्छे घरों के बच्चे नहीं आते, ओके जो सक्षम हैं, जो बड़े घर के हैं, जी जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे Right. डोंट प्ले। बच्चे आते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर के बच्चे आते हैं हमेशा। आप नेशनल लेवल पे भी देखिए, क्रिकेट टीम उठा के देखिए
तो बारिंग सौरभ गांगुली या एक आध नाम और लीजिए, सब आपको ऐसे ही मिलेंगे, आम परिवारों के बच्चे। तो ये भी मुझे लगता है कि भारत के साथ बड़ा अन्याय है, क्योंकि जो परिवार अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी डाइट और उनको जॉब की भी इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, दे हैव बिजनेस इन देयर हाउसेज एंड उनको आर्थिक इतनी समस्या नहीं है, तो ऐसे बच्चे खेलते नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से बड़े सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बच्चे मैदान में आएँ, खेलें, क्योंकि देखिए खेलने से कुछ नहीं तो एक कैरेक्टर तो बनता है, और समाज में अगर जिसे हम समरसता कहते हैं वो सिर्फ खेल में आती है। जब हम खेल मैदान में रहते हैं, जैसे आई वाज सन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन जब मैं मैदान में जाता था तो वहाँ पे प्यून का बच्चा भी मेरे साथ खेलता था, एक और किसी आदमी का बच्चा भी खेलता था, एंड वी वर फ्रेंड्स। तो उसमें कोई ऐसा बड़ा छोटा नहीं था। तो समाज में अगर कहीं इक्वालिटी है, समानता है, समरसता है, तो खेल मैदान में है। बिल्कुल। तो समाज को अगर तरक्की करना है तो सबको खेल मैदान में आना पड़ेगा, सबको आपस में मिक्सअप होना पड़ेगा। सबके अंदर ये भावना जो बड़े छोटे की, ये खेल ही खत्म कर सकता है। खेल ही ऐसी चीज़ है जिसमें करोड़पति का बच्चा और एक गरीब का बच्चा एक साथ खेलते हैं, कंधे में कंधा मिला के चलते हैं, गले में एक दूसरे के हाथ डाल के दोस्ती निभाते हैं। ये खेल में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। अदरवाइज आप देखिए आपके कॉलेज में भी जो एक ग्रुप बन जाते हैं, एक वेरियस अलग अलग, कहते हैं ना कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो ऐसी स्थिति। तो खेल तो बहुत जरूरी समाज के लिए। तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी परिवारों से, बड़े लोगों से, कि बच्चों को तो मैदान में भेजें। राइट। Also, sir, as we all know that you've been active in MP politics, you are a former MLA. So we all really intend to know, like all our viewers really wish to know, what exactly fascinated you about politics? What made you enter or rather join politics? Look, politics जो है ना मेरे घर में रही है, परिवार में रही है। My grandfather was Prime Minister of Andhra Pradesh. Right. एंड ही, उनके नाम पे रीवा यूनिवर्सिटी है, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ही वाज ए फ्रीडम फाइटर। माय फादर बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। माय ब्रदर वाज मिनिस्टर टिल 2018। अभी भी मेरा भतीजा विधायक है वहाँ हमारी ट्रेडिशनल सीट से। मैं भोपाल से चुना गया था। तो ये मेरे खून में है। तो समाज सेवा और लोगों का मदद करना, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी लोगों की सिफारिश करने ऑफिस में लोगों के यहाँ चला जाया करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समाज सेवा की जो भावना थी और लोगों की मदद करने की भावना, उसने थोड़ी सी पॉपुलैरिटी दे दी। और एक ग्रुप फॉर्म हो गया। जब ग्रुप फॉर्म हो जाता है और वो आपको अपने नेता मान लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक नेता बन जाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि परिस्थितियों ने मुझे नेता बना दिया। हालांकि नेता वाली स्टूडेंटनेस ना मेरे अंदर है, और ना मैं शायद उतना एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हो सकता हूँ, लेकिन क्या है कि परिस्थितियों ने, हालात ने मुझे नेता बना दिया। लेकिन ठीक है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा, जब भी इलेक्शन इज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर मी, प्रॉब्लम हमेशा सिलेक्शन ही होती मेरे लिए। तो एनीवे, आई एम हैप्पी हियर, और डेफिनेटली आई इंटेंड टू कम बैक एंड I will again do the service for the public. Absolutely. और आप अगर सर्वे करेंगे जहाँ से मैं विधायक था, तो they will tell you about me कि what kind of MLA I was and how I used to do work for them. So it is my hobby and it is my tradition. Okay. Now that we already know you were being humble here, but I would like to know, how will you sum up your journey as an MLA? What do you think? How was your tenure? Quite satisfying, and I'm happy that every लोग तो कहते हैं हमने विकास किया, right? लेकिन आप मेरे साथ चलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में जी, तो लीव वार्ड अपार्ट, लीव मोहल्ला अपार्ट, अगर आप किसी कोने में भी मेरे साथ चलिए तो मैं आपको बता दूंगा कि इस कोने में मैंने ये काम किया। तो जो डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ये विकास जिसे कहते हैं, उसमें मैं बहुत सेटिस्फाइंग था। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे लोगों की मदद की जो कर सकता था। कार्यकर्ताओं को आई ऑलवेज केप्ट देम वेरी हैप्पी। तो कुल मिला के मैं अपने कार्यकाल से बहुत खुश हूँ। और इवन पब्लिक, अगर पब्लिक खुश है तो मैं खुश हूँ। तो आपको पब्लिक से पूछना चाहिए, इफ़ दे आर हैप्पी आई एम हैप्पी, इफ़ दे आर नॉट हैप्पी तो मेरे खुश होने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो कुल मिला के ये है कि मैं इसलिए खुश हूँ कि लोग बहुत खुश थे मेरे समय में. Right. Okay, sir. Now, as far as Indian politics is concerned, there is something that I would like to talk about. It is for many young people still a challenge to enter politics, especially the ones who are not very sound financially and are aspiring to be good politicians and work for the people. So, what do you think? How can that be, that challenge be solved? Somehow I will not agree with you here. Okay. Because our Prime Minister Narendra Modi, Ji. he used to sell tea. Ji. He was a very common man. Right. He belonged to a very common family. His mother used to work here and there, as he himself has told. Right. Our Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji, he is a marginal farmer. Ji. And he hails from a very down-to-earth background. Ji. And our state president, Mr. V.D. Sharma, he also belongs to a Ji. very common family. So you cannot say that there is no scope for people who doesn't have solid background. Right. But पॉलिटिक्स में मेरा ये सोचना है कि बैकग्राउंड इमेटेरियल है, योग्यता पहले होनी चाहिए. सही बात है. और somehow हम लोग इस सिस्टम कुछ ऐसा डेवलप हो गया, आई वुड नॉट हेजिटेट टू से दैट हम कहीं ना कहीं योग्यता से कंप्रोमाइज भारत में कर रहे हैं जी. सब जगह. तो वो अगर हम योग्यता को पैमाना माने, बैकग्राउंड को छोड़ दें, जी. कोई अच्छे घर से भी है, कोई बहुत करोड़पति घर से, लेकिन अगर उसके अंदर समाज सेवा की भावना है तो ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी. अगर कोई गरीब घर से उसके अंदर बहुत प्रतिभा है तो ही शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी. तो अपन को ये सोचना जी कि नहीं साहब ये हम एक फिक्स अपने आप को उसमें बांधेंगे क्राइटेरिया में, तो ये तो गलत होगा. दिस ऑलवेज विल कर्टेल द मेरिट एंड आई थिंक यही हो रहा है देश में. ये थोड़ी सी चिंताजनक है. इसको कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है. जी. What do you think? What can be, really done to encourage the youth to enter into politics? Youth are coming in a very Still, there are many young people who still do not see politics or being a politician as a very stable career for themselves. So, what do you think can be done? देखो साहब, पॉलिटिक्स इज वेरी फ्लूइड ऑलवेज. ओके. तो ये कैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसमें सर्टेनिटी कुछ नहीं है. जी. पहली बात तो ये है कि हम आए हैं तो हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, सफल हुए तो कहाँ सफल होंगे, टिकट मिल गया तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. राइट. तो कुल मिला के ये पॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी तो है जी, लेकिन है मज़ेदार. और अगर आपके अंदर जरा भी जन भावना के प्रति सेवा भाव है जी. जन के प्रति, तो आपको आना चाहिए, हाथ आजमाना चाहिए. और कहते हैं ना कि किनारे पे बैठ के क्या मज़ा लेना, सही बात. कूदना चाहिए नदी में और तैरना चाहिए. जो दमदार लोग हैं, जो अच्छे युवा हैं, मैं उनको आह्वान करता हूँ, आई इनवाइट देम, कम आइए. आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए. तो राजनीति में थोड़ा उसकी जो वोलेटाइलनेस है उसको भूल के आना चाहिए. ओके. ये सोच के कि अरे क्या होगा, इस मजे से लोगों को मुक्त नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि राजनीति है तो बहुत इंटरेस्टिंग. राइट. All right, sir. What do you think is the importance of voice of dissent or the right to dissent in very vibrant democracy like ours? What do you feel? How important is, or how much we need to acknowledge the right to disagree when we talk about the opposition in the country? That right is always with you. Right. You should have that courage to tell that I don't agree here. Right. But somehow for vested interests, for other things, क्या होता है कि कौन गलत कहे, क्योंकि जो गलत कह रहा है वो भी कई जगह गलत है. तो प्रश्न ये उठता है कि कहते हैं ना कि when you point a finger towards anybody, 3 point towards you. Absolutely. तो पहले हम ये देखें कि हम कितने पाक साफ हैं. जी. तो फिर हम गुड़ खाना नहीं छोड़ते और हम लोगों को गुड़ खाने से मना करते हैं, तो कौन मानेगा हमारी बात. सही बात है. तो कुल मिला के ये है कि
राइट टू डिसेंट या डिसएग्री अपने पास है, लेकिन अपने पास इतना मॉरल करेज होना चाहिए कि हम खड़े होकर कह सकें, और उसके लिए अगर कोई कीमत चुकानी है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने जब सत्य से अपना वो किया था, अपना एक्सपीरियंस, ट्रुथ उनकी बुक भी है, तो उन्होंने बहुत फेस किया था। लेकिन ठीक है, उन्होंने कीमत दी, लेकिन इसीलिए ना आज वो महात्मा कहलाते हैं। Absolutely. तो ठीक है, हर चीज़ की कीमत होती है। एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस टैग इन लाइफ। Right. That's absolutely true. Well, sir, what do you think? How can we, encourage the youth of today to serve the society, or, get into the service of the society to encourage them to do social work? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत आनंद है जी। जब हम शाम को घर पहुंचते हैं और अगर हमने 4 लोगों की मदद की है, किसी का ले जाके हॉस्पिटल में इलाज करा दिया है, किसी को थाने में कोई दिक्कत है तो वहाँ उसकी दिक्कत दूर करा दी है, या किसी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई बच्चे को कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमने वो दूर करा दी, तो उस दिन के अंदर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ही कुछ और होगा। जी। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत आनंददायक है। इस सर्विस में वास्तव में अगर सेवा करना है तो वो सेवा सिर्फ इसी पॉलिटिक्स के माध्यम से ही हो सकती है। अगर रियल सर्विस हम बात करें समाज की, जैसे जब कोरोना की सेकंड वेव थी, तो माय फोन नेवर स्टॉप्ड रिंगिंग टिल 12 PM इट यूज्ड टू 12 AM इट यूज्ड टू रिंग, और मैं हर फोन उठाता था, कोई भी नंबर देखे बिना। आई यूज्ड टू रिसीव एवरी कॉल, और सारे डॉक्टर आपको चिरायू से लेके और भोपाल मेमोरियल के डॉक्टर अजय मेहता तक, वहाँ तक जितने हॉस्पिटल हैं, सब आपको बताएंगे कि मैं दिन भर उनको फ़ोन करता रहता था कि यार एक बेड दे दो, या एक ऑक्सीजन का कोई वो व्यवस्था करा दो, या रेमडेसिविर कहीं से मिल जाए, या टॉसलीजुमैब कोई बहुत क्रिटिकल है तो उसको मिल जाए। तो अब मैंने ये कहीं न लिखा गया ना कहीं अखबार में आया, लेकिन मुझे संतोष है, और जिन लोगों की मैंने मदद की होगी उनका दिल जानता, वो कहीं बैठते होंगे तो बात करते होंगे, मुझे नहीं मालूम। और यहाँ तक कि उस ज़माने में लोगों की डेथ हो जाती थी तो हॉस्पिटल से लाशें छुड़वानी पड़ती थी सौदाबाजी करके, कि वो हॉस्पिटल कहता 10 लाख का बिल है, तो हम लोग कहते थे भैया 2-4-5 लाख रुपए लेके लाश छोड़ दो। तो जब हम ऐसा काम करते हैं, मैं तो उस वक्त भी जो शमशान घाट है, तो कोई अपना अगर गया है तो मैं शमशान घाट जाने भी मुझे गुरेज नहीं था। आई यूज्ड टू गो टू ये शमशान घाट एंड एवरीवेयर। तो मेरा ये कहना है कि जीवन में अगर आनंद है या जीवन में जो सुख है वो यही है, और जो इस सुख को प्राप्त करेगा वही जानेगा कि क्या है। दूर से आप बैठ के नहीं समझ सकते। तो मैं यूथ को यही बोलूँगा कि अगर आपको अपने लाइफ को सफल करना है, और इसमें पार्ट टाइम आप दो, अपने जॉब के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए ज़रूर कुछ करो, लेकिन समाज सेवा में भी कुछ समय दो। भले आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स मत करो, बट आप किसी एनजीओ से जुड़ो, किसी संस्था से जुड़ो जो काम करती है, किसी व्यक्ति से जुड़ो। मैंने तो कोई एनजीओ के माध्यम से काम करता नहीं हूँ, किसी संस्था के माध्यम से काम करता नहीं हूँ, मैं तो इंडिविजुअली करता हूँ। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, मेरे कहने से बहुत से लड़के काम करते हैं। तो आएँ और काम करें, किसी के साथ जुड़कर उनको खुशी मिलेगी, उनका सर्किल बढ़ेगा, हो सकता है ऑटोमेटिक वो पॉलिटिक्स में आ जाए। राइट सर, also that you talked about your father and your grandfather, what do you think, what role did the two of them play in making what Mr. Dhruv Narayan Singh is today? मैं तो उनका एक पार्ट भी नहीं हूँ जी, जहाँ तक मेरे फादर की ग्रैंडफादर की बात करें। लेकिन ठीक है, अब मेरे ग्रैंडफादर तो आई वॉज वेरी स्मॉल, वेरी यंग व्हेन ही डाइड। आई सॉ माई फादर. My father was a very straight and very to the point politician. Right. तो वो बहुत स्ट्रेट थे, ऑनेस्ट थे, और समझौता नहीं करते थे। मैंने उनसे सीखा है कि आदमी को अपने सिद्धांत में रहना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज़, शायद मैं उतना स्टबर्न तो नहीं हूँ, लेकिन तो भी कोशिश करता हूँ कि अपने जो भी मैंने अपने जीवन में एक सोच बनाई है कि मैं इस लाइन में चलूँगा, या इतना ही झुक पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं झुक पाऊँगा, तो उस पर मैं कायम रहने की कोशिश करता हूँ। मैं नफ़ा नुकसान को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता। तो उनसे ये सीखा है मैंने। और दूसरा ये सीखा है कि सोशल वर्क में आदमी को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता। मैं आपको एक घटना बताऊँ, मेरे बड़े ब्रदर हुआ करते थे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट इन 1986,
और उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो उनके उसमें नहीं रहो सेवा में। हर तरह का सारी सर्जिकल हो, ऑर्थोपेडिक्स हो या ऑप्थेल्मोलॉजी हो या और जितने डिपार्टमेंट है सब इतनी चोटें आई थी जिसका मैं विवरण इसमें नहीं देना चाहता। अब मेरे फादर भी दिल्ली से आए और वो वहीं प्राइवेट वार्ड में 2-3 कमरे लेके हम लोग वहीं रहने लगे, तो टेम्परेरी फ़ोन भी लग गया। तो लड़का डेथ बेड पे है, लोग आते थे उनसे सिफारिश कराने, तो वो मतलब सबके लिए चिट्ठी भी लिखते रहते थे, फ़ोन भी करते रहते थे। जिस इंसान का लड़का डेथ बेड पे हो वो लोगों की सिफारिश कर रहा है, ये मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये है सोशल सर्विस। ये किसी ने इसको किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैंने जो देखा उससे मैंने लिया कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और इससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। Right, sir. Now that we have been talking about a lot of serious stuff, one last question that I have for you is, what are your pastime activities? What are the hobbies? Actually, I don't have much time to enjoy in life because मैं सुबह निकलता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं दोपहर को आता हूँ तो शाम को वॉक करने चला जाता हूँ, फिर शाम को ऑफिस बैठता हूँ तो 10:30 बजे घर आता हूँ। अगर शादियाँ वगैरह नहीं रहती तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं पास टाइम के बारे में सोचूं। पर अगर मौका मिलता है तो आजकल मैं थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ या किन्हीं दोस्तों के साथ घर चले गए। इससे ज़्यादा अब कुछ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बची नहीं। हाँ, अब ये है कि स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, तो लॉट ऑफ टाइम विल गो इन दैट आल्सो। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है मुस्कान जी कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर करूँ, लेकिन जो भी होगा आपने कहा है तो मैं सोचूंगा कि कुछ मुझे हॉबी करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली अ मैटर ऑफ immense pleasure and privilege to have you over. It was wonderful interacting with you. I hope you felt the same. And how was your experience here? It is quite amazing, and as you said, the feeling is the same, and I am so happy that I got an opportunity to tell about myself and about my feeling and so many things, and I could give message to you, to the youth from here. Right. So it's a great pleasure, and I would always look forward whenever you people will invite me, call me. I am always there. Thank you so much, sir. All right, listeners, thank you so much, listeners and viewers. Stay tuned with BSSS Rhythm, the international online radio. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.